ایک مرتبہ پاکستان کی خفیہ ایجنسی آئی ایس آئی نے اپنے ایک ایجنٹ کو بھارت کے اندر ایک چائے کا سوداگر بنا کر بھیجا۔ یہ ایجنٹ وہاں پہنچ کر نہ صرف کامیاب سوداگر یعنی وہاں کا ایک مشہور بزنس مین بنا، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اس نے بھارتی اداروں اور بھارتی فوج کے اندر اپنی بڑی مضبوط شناخت بھی بنا لی، اور یہی وجہ رہی کہ اس نے بڑے کامیاب آپریشن کیے اور بالآخر ایک مقام پر آ کر یہ پکڑا گیا۔ مگر اس کے بعد اس کا انجام کیا ہوا اور کس طرح سے آج بھی بھارت کی خفیہ ایجنسیاں اور پاکستان کی خفیہ ایجنسیاں اس شخص کو نہ صرف یاد رکھے ہوئی ہیں بلکہ بڑے بڑے پروگراموں کے اندر اس کا تذکرہ بھی کیا جاتا ہے۔ اس ایک سوداگر نے جا کر بھارتی ایجنسیوں کو ایسا تگنی کا ناچ نچا کے رکھ دیا تھا کہ کئی سال تک وہ اس شخص کو تلاش کرنے میں ناکام رہے تھے کہ جو شخص مسلسل ان کی سیکرٹ انفارمیشن پاکستانی خفیہ اداروں کو پہنچا رہا ہے، اور اس کے جواب کے اندر پاکستانی خفیہ ادارے بھارت کے بہت بڑے بڑے مشن ناکام کرتے آ رہے ہیں۔ اس شخص نے تو وہاں پر فوج میں شمولیت حاصل کرنے کے لیے بھی کئی مرتبہ کوشش کی مگر ناکام رہا، لیکن اس کے باوجود بھی بھارتی ایجنسیوں اور بھارت کی فوج کے جرنیلوں کے ساتھ اس کی دوستی کمال کی تھی۔ اور پھر آہستہ آہستہ اس نے کس طرح سے پاکستان کو نہ صرف بھارت کی خفیہ انفارمیشن دی بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اکیلے نے گورکھپور کا پورا ایئر بیس ہی تباہ کر کے رکھ دیا تھا۔ یہ ایک ایسا واقعہ ہے کہ جس واقعے سے بھارت آج تک انکار نہیں کر پایا ہے، اور پاکستان کی خفیہ ایجنسیاں اس واقعے کے اوپر ہمیشہ اپنی برتری جتاتی آئی ہیں۔ ویسے تو دنیا میں بہت بڑی بڑی خفیہ ایجنسیاں موجود ہیں، لیکن پاکستان کی آئی ایس آئی نے جس طرح سے کام کرنے کا اپنا ایک لیول بنا رکھا ہے اور ایک انداز بنا رکھا ہے تو وہ خود ہی ایک بہت خفیہ قسم کا ہے۔ ایک مرتبہ تو اس ایجنٹ کے اوپر ڈی ایم آئی کو بھی یعنی جو بھارت کے خفیہ ایجنسی ہے اس کو بھی شک ہوا، جب ڈی ایم آئی کے افسران نے اسے اپنے پاس بلا کر تفتیش کی اور پھر فوجی تعلقات کے حوالے سے بات کی تو اس ایک ایجنٹ نے پرائے ملک کے اندر رہتے ہوئے بڑے ہی کانفیڈنس کے ساتھ نہ صرف ان کو جواب دیے بلکہ انہیں پریشان بھی کرایا، اور یہ کہہ کے آیا کہ میرے فوجیوں کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات ہیں، میں ایک کاروباری شخص ہوں اور تم نے مجھے یہاں بلا کر تنگ کیا ہے، اب میں تمہاری شکایت تمہارے افسران کو کروں گا۔ جس کے بعد ڈی ایم آئی کے بڑے بڑے افسران اس کے گوڑوں کے اندر اس کے گھٹنوں کے اندر بیٹھ گئے تھے کہ آپ ہماری شکایت نہ کیجیے، ہمیں صرف ایک شک تھا اور وہ شک دور ہو گیا ہے۔ اب اس کے بارے میں ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں کہ اس کا اصل نام کیا تھا، اس نے بھارت کے اندر جا کر کون کون سے مشن پورے کیے تھے، اور کس طرح سے آج بھی اس کی بڑی بڑی نشانیاں بھارت کے اندر بھی موجود ہیں، پاکستان کے اندر بھی موجود ہیں، اور اس ایجنٹ کے جو کارنامے تھے وہ ہمیشہ فراموش نہیں کیے جا سکیں گے، ہمیشہ پوری پاکستانی قوم اور بھارت کی خفیہ ایجنسیاں ان کو یاد رکھے گی۔ لیکن اس سے پہلے ہم سب کو مل کر یہ دعا کرنی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پاکستان، بھارت اور پوری دنیا کی خفیہ ایجنسیوں کو یہ توفیق دے کہ وہ عام شہریوں کو نشانہ بنانے کے بجائے آپس میں ہی لڑیں اور ایک دوسرے کو شکست دینے کے لیے کام کریں، کیونکہ انسان کی کسی بھی ایک انسان کی زندگی بڑی قیمتی ہوتی ہے، چاہے وہ پاکستان کا ہو، چاہے وہ ہندوستان کا ہو یا کسی بھی ملک کا ہو۔ تو ہم سب کو دعا کرنی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پوری دنیا کے انسانوں کو جو جس مرضی مذہب سے تعلق رکھتا ہو اس کو اپنی حفظ و امان میں رکھے اور اسے اس طرح کے واقعات سے بچائے کہ جس کے بعد اس کی زندگی اس کے لیے اجیرن ہو جائے۔ اگر آپ اس دعا میں شامل ہونا چاہیں جو پوری انسانیت کے لیے کی جا رہی ہے تو کمنٹ سیکشن کے اندر آمین ضرور لکھ دیجیے گا، اور اگر اب تک آپ نے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو وہ بھی کر لیجیے اور بیل آئیکن کو پریس کرنا ہرگز مت بھولیے گا تاکہ آپ کو ہماری تمام تر ویڈیوز بر وقت موصول ہوتی رہیں۔ میں ہوں شکیل حیدر اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا پسندیدہ چینل بگا فیکٹس۔ ناظرین گرامی، یہ جو پاکستان کا خفیہ ایجنٹ بھارت کے اندر گیا تھا اور اس نے وہاں پر اپنا نام ونود چوپڑا رکھا ہوا تھا، اس کا اصل نام تھا سید سلیم عباس، جو پاکستان کے اندر تو اس نام سے جانا جاتا تھا مگر اس کا بھارت کے اندر کوڈ نیم ونود چوپڑا تھا۔ 1971 کی لڑائی کے بعد جب کچھ غداروں اور بھارتی خفیہ ایجنٹس کی وجہ سے پاکستان کو شکست ہوئی، اور اس وقت جب پاکستان کے اندر بڑی بے چینی اور بڑی مایوسی پائی جاتی تھی، پاکستان کے جو بڑے بڑے ادارے تھے وہ پریشان تھے کہ ہم کس طرح سے اپنے دشمن کو منہ توڑ جواب دیں، تو اس زمانے کے اندر سید سلیم عباس نامی یہ شخص تربیلا ڈیم پر ایک اسسٹنٹ انجینئر کے طور پر کام کر رہے تھے، اور ان کی پروگرس بڑی شاندار تھی۔ یہ جتنے انٹیلیجنٹ تھے تو ان کے افسران حیران ہو جاتے تھے کہ یار پاکستان کے اندر ایک اتنا انٹیلیجنٹ بندہ ہے اور یہ یہاں پر ہے، اس کو اوپر جانا چاہیے۔ تو جب یہ حالات بنے 1971 کے اندر پاکستان جب بڑا ہی مایوس ہوا تو پھر یہ بھی بڑے افسردہ ہوئے تھے اور انہوں نے بھی پھر تہیہ کیا، وعدہ کیا کہ یہ اپنے ملک کے لیے کچھ کریں گے۔ یہ وہاں سے آئی ایس آئی کے پاس گئے،
ISI वालों से इन्होंने बात की और इन्होंने कहा कि मैं अपने मुल्क के लिए कुछ करना चाहता हूं, तो फिर इनकी जो इंटेलिजेंट होने की मिसाल थी, जो धूमें थी, वो वैसे ही ISI तक पहुंची हुई थी। ISI को भी पता था कि ये बंदा बड़ा मुखलिस है अपने मुल्क के साथ, ये हमारे लिए बहुत कुछ कर सकता है। तो फिर उन्होंने इसको स्पेशल ट्रेनिंग दी। उस ट्रेनिंग के बाद ISI का ये एजेंट चाय का एक बहुत बड़ा ताजिर बनकर भारत पहुंच गया। जब ये भारत के अंदर पहुंचा तो इसने वहां पर बड़े बड़े लोगों के साथ कॉन्ट्रैक्ट किए, वहां पर इसने अपनी चाय दूसरों की निस्बत सस्ती भी प्रोवाइड की, सस्ती बेचता रहा और उसके साथ साथ इसका जो ब्रांड था वो बड़ा मशहूर होने पड़ गया। अब ये वो जमाना था कि जब भारतीय फौज के अंदर खाने पीने के मुख्तलिफ कॉन्ट्रैक्ट मुख्तलिफ ठेकेदारों को दिए जाते थे। मसलन चाय का ठेका किसी एक के पास है, गोश्त का ठेका किसी दूसरे के पास है, पानी का, रोटियों का, ये सारे ठेके, आज भी ये ठेके होते होंगे भारतीय फौज के अंदर, तो ये ठेके चलते थे। तो इसने भी वहां पर भारतीय फौज के अंदर चाय का ठेका ले लिया कि मैं आपको बेहतरीन पत्ती सस्ते दामों के अंदर पहुंचाया करूंगा। आपकी पूरी फौज, चाहे वो 5 लाख है, 10 लाख है, जितनी आपको पत्ती चाहिए होगी मैं आपको पहुंचाया करूंगा। सस्ती भी होगी और मयारी भी होगी। उसके ताल्लुकात वहां पर जुड़ना शुरू हो गए। बेहतरीन इसने वहां पर ताल्लुकात बना लिए, बड़े बड़े अफसरों के साथ इसका उठना बैठना हो गया। और फिर वो दिन आ गया कि जब आहिस्ता आहिस्ता इसको ये पैगाम भिजवाए जाने लगे कि अब आपने अपने असल काम के ऊपर आना है। अब उससे पहले तो ये जो माइनर किस्म की है, छोटी किस्म की इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स होती थी, वो पाकिस्तान को भिजवा रहे थे, पाकिस्तान को उनसे भी बड़ा फायदा मिल रहा था। लेकिन फिर इनका जो बड़ा काम था वो बड़ा काम इनके जिम्मे लगाया गया और इन्हें ये पाकिस्तान से ISI के एजेंट्स ने इंफॉर्मेशन दी, बताया कि जी अब भारत अपने एटमी जो तजर्बे हैं उनकी तैयारी कर रहा है और उनकी तमाम तर मालूमात हमें दीजिए और हम तक पहुंचाइए। अब ये मिशन बहुत बड़ा था और सलीम अब्बास भी जानते थे कि किस तरह से उन्होंने अपना ये मिशन कंप्लीट करना है। लेकिन चूंकि उनकी वहां के बड़े बड़े ब्रिगेडियर्स के साथ, बड़े बड़े फौजी अफसरान के साथ बड़ी जबरदस्त किस्म की ना सिर्फ अच्छी तरह ताल्लुकात की हद थी, बल्कि उसके साथ साथ ये बड़े जबरदस्त तरीके से वहां पर किसी को महसूस ही नहीं होने देते थे कि ये एजेंट हैं या ये उनका डाटा चुरा कर या उनका डाटा पाकिस्तान मुंतकिल कर रहे हैं। इन्होंने फिर आहिस्ता आहिस्ता वहां पर जितनी भी फाइलें थी, एटमी नक्शे थे, वो सारी फाइलें, एटमी नक्शे पाकिस्तान भेजना शुरू कर दिए, पाकिस्तान के अंदर पहुंचाना शुरू कर दिए। और पाकिस्तान को जब सारी इंफॉर्मेशन मिल गई तो फिर पाकिस्तान ने भारत से 3 गुना बड़ा एटमी तजर्बा किया और भारत हैरान रह गया कि ये हमारे साथ क्या हो गया। यानी कि उसके बाद फिर भारतीयों को बड़ा जबरदस्त किस्म का ये शक होने लगा कि यार हमारे अंदर कोई बंदा है जो हमारी इंफॉर्मेशन मुसलसल पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI को दे रहा है। तो उन्होंने बंदा ढूंढना शुरू किया और फिर ढूंढते ढूंढते बिल आखिर वो इन तक पहुंच गए। यानी कि सलीम को ऊपर जब उनकी एजेंसियों को शक हुआ और फिर इन्हें गिरफ्तार किया गया और 1 महीने के लिए इन्हें अपने पास रखा गया। इन्वेस्टिगेशन होती रही, एक मरतबा पहले ये पकड़े गए थे लेकिन फिर आ गए थे, फिर जब दोबारा इनको पकड़ा गया तो फिर भारत के बड़े बड़े खुफिया इदारे आ गए, उन्होंने जदीद टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करनी शुरू कर दी। यानी कि इनको जिस तरह से टॉर्चर किया जा सकता था, जिस तरह से इनसे इन्वेस्टिगेशन की जा सकती थी, वो सारा कुछ किया गया, इनके ऊपर जुल्म किए गए, लेकिन इन्होंने वो सारे बर्दाश्त किए। और फिर एक ऐसी अनहोनी हो गई कि जो ना तो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियां कभी भूल सकती हैं, ना भारत की खुफिया एजेंसियां कभी भूल सकती हैं। और वो अनहोनी ये हुई कि पूरी दुनिया की तारीख की जितनी भी खुफिया इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं, उन एजेंसियों के अंदर पहली मर्तबा एक एजेंट अपनी दूसरी एजेंसी के जो कैद खाना है या जो उन्होंने गिरफ्तार करके उसे रखा हुआ है, वो वहां से भागने में कामयाब हो गया। आज तक पाकिस्तान समेत, भारत समेत पूरी दुनिया की खुफिया एजेंसियों में ऐसा नहीं हुआ है कि एक एजेंट दूसरे मुल्क के अंदर पकड़ा जाए और वहां की सबसे बड़ी खुफिया एजेंसियों ने उसको वहां पर कैद करके रखा हुआ हो और फिर वो उनके हाथ से भाग जाए या मफरूर हो जाए। ये सिर्फ सैयद सलीम थे कि जो भारत की खुफिया एजेंसियों से 1 महीने के अंदर अंदर भागने में कामयाब हो गए। ये वहां से भागे और फिर मुंबई पहुंच गए। जब सलीम मुंबई पहुंचे तो चूंकि इनका कारोबार बड़ा रहा था, इनका बड़ा नाम रहा था, तो उन दिनों उनकी मुलाकात वहां पर हाजी पाटेल और यूसुफ मस्तान से हुई। अब ये जो हाजी पाटेल और यूसुफ मस्तान थे, ये दरअसल मुंबई के डॉन थे, वहां के हीरो थे और इनकी एक काल के ऊपर, इनकी एक इशारे के ऊपर पूरा मुंबई जाम हो जाया करता था, बंद हो जाया करता था। लोग वहां पर इनकी, यानी कि ये लोग इनको इतना प्यार करते थे कि इनकी एक किस्म की पूजा करते थे। फिर ये दोनों मुसलमान भी थे और मुसलमानों को भी ये बड़ा ज्यादा सपोर्ट किया करते थे। और उन दिनों इनके बारे में ये भी मशहूर था ये कि भारत के सबसे बड़े स्मगलर हैं। बहरहाल ये इनके पास, सलीम शाह इनके पास चला गया। सलीम अब्बास ने जाकर इनके साथ दोस्ती कायम कर ली, ताल्लुकात कायम कर लिए। दूसरी जानिब पूरे भारत की खुफिया एजेंसियां ढूंढ रही हैं, तलाश कर रही हैं कि भाई ये कहां बंदा चला गया, हमसे भाग कर ये गायब हो गया। लेकिन सलीम अब्बास ने अपना हुलिया ऐसे तब्दील किया था और ऐसे अपनी पूरी जिंदगी की काया
पलट दी थी कि फिर इसको पता ही नहीं, यानी कि इसके बारे में किसी को पता ही नहीं चल रहा था कि आखिर कौन है कि जो इसको ढूंढ लाए, या किसी को समझ ही नहीं आ रही थी कि इसको किस तरह से पकड़ा जाए। बहरहाल हाजी पटेल और यूसुफ मस्तान चूंकि दोनों चोटी के बदमाश थे, स्मगलर थे, डॉन थे, तो इन दोनों की पहले दोस्ती हुआ करती थी, मगर फिर किसी वजह से इनके अंदर लड़ाई हो गई थी और सलीम अब्बास ने इनकी सुलह करवा दी। और जब इनकी सुलह हुई और पूरे मुंबई के ऊपर, अक्खा मुंबई पर इनका राज चलने लगा, तो ये दोनों सलीम पर फिदा हो गए। इन्होंने सलीम से कहा, सलीम भाई आपको जो चाहिए हम आपको देंगे, आप जो मर्जी काम करना चाहें हम आपको देंगे, आप हुक्म करें कि आपके लिए हमने करना क्या है। और फिर सलीम ने इनको जो जो कहा वहां पर इनकी ना सिर्फ मदद की गई सलीम की, बल्कि इन्होंने बड़ा खुलकर वहां से सलीम को सपोर्ट भी किया। बहरहाल सलीम ने इनको कहा कि जी मैं फिलहाल जहां से भागना चाहता हूं और मैं नेपाल पहुंचना चाहता हूं। अब सलीम नेपाल क्यों पहुंचना चाहता था? नेपाल इसलिए पहुंचना चाहता था क्योंकि पाकिस्तान से आईएसआई ने सलीम को इंफॉर्मेशन भिजवाई थी कि नेपाल से जो राह है, यानी कि भारत की खुफिया एजेंसी है, उसके 4 या 5 जो बड़े बड़े अहम एजेंट्स हैं वो नेपाल के रास्ते पाकिस्तान के अंदर दाखिल हो रहे हैं और पाकिस्तान के अंदर आकर अमन खराब करेंगे, तो उनका पत्ता काटना है। तो सलीम ने इनसे कहा कि मैं नेपाल जाना चाहता हूं। उस वक्त नेपाल जाने के लिए सलीम की जो हालात थे वो बड़े गंभीर थे, बड़े खराब थे, और ये कोशिश कर रहे थे कि सलीम को भिजवा लें, मगर ये सलीम को भिजवाने में नाकाम हो रहे थे। तो उन्हीं दिनों फिर सलीम की एक मर्तबा एक शराब के बार के अंदर एक ब्रिगेडियर की जो बीवी थी उसके साथ दोस्ती हो गई। ब्रिगेडियर की बीवी इसके ऊपर फिदा हो गई। इसने ब्रिगेडियर की बीवी से भी फिर आस्ते-आस्ते इंफॉर्मेशन निकलवानी शुरू की कि कहां-कहां नाके लगा रही है, कहां-कहां फौज मुझे पकड़ने के लिए काम कर रही है। यानी कि उसकी बीवी ने इसके साथ बड़ा ज्यादा ताउन किया, वो इसके साथ बड़ी ज्यादा मोहब्बत और इश्क के अंदर टूट गई, पागल हो गई। वो ये कहती थी कि सलीम मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी चाहे मुझे कुछ भी हो जाए, लेकिन सलीम को पता था कि इसकी जिंदगी के बहुत कम दिन है और इसने अपना मिशन पूरा करना है, अपने मुल्क के लिए काम करना है। बहरहाल सलीम को वहां से नेपाल पहुंचाने के अंदर जहां हाजी पटेल और यूसुफ मस्तान ने काम किया, वहीं पर ही इस ब्रिगेडियर की बीवी ने भी, इन्होंने छुपकर शादी भी कर ली थी और इन्होंने बड़ा काम किया, क्योंकि उसने फिर इसको बाकायदा तौर पर एक फौजी ट्रक के अंदर बिठवाया और फिर इसको वहां से नेपाल पहुंचवा दिया। नेपाल पहुंचकर ये यहां पर जो आईएसआई के लिए काम करने वाले लोग थे उनके साथ मिला। वहीं पर एक चाइनीज लड़की के साथ इसके ताल्लुकात बने और चाइनीज लड़की से इसने निकलवाया, या उसके जरिए इसने इंफॉर्मेशन निकलवाई कि ये जो एजेंट्स हैं कहां आ रहे हैं, क्योंकि नेपाल के उस वक्त 2 या 4 ही ऐसे होटल थे कि जहां पर पूरी दुनिया के जो खुफिया एजेंट्स थे वो जाकर वहां पर स्टे किया करते थे। वही बड़े बदनाम भी थे और बड़े मशहूर भी थे कि यहां पर पूरी दुनिया की खुफिया एजेंसियों के एजेंट्स का डेरा होता है। तो वहां के बारे में ये जो चाइनीज लड़की थी, क्योंकि ये हर होटल के अंदर काम कर चुकी थी, तो इससे इसने इंफॉर्मेशन निकलवाई सलीम ने और फिर उनको रास्ते से हटा दिया। पाकिस्तान पहुंचने से पहले ही उनको जहन्नम के रास्ते पर पहुंचा दिया और इस तरह से वहां पर इसने थोड़ा सा काम किया। फिर उसके बाद सलीम वहां से फरार हुआ, दुबई चला गया। दुबई के अंदर फिर इसने पाकिस्तान के लिए 1-2 काम किया। उसके बाद सऊदी अरब गया। सऊदी अरब की हुकूमत भी आज तक सलीम का बड़ा एहतराम करती है और सलीम को याद करती है, क्योंकि उसने सऊदी अरब के अंदर भी बड़ा ज्यादा काम किया था और वहां पर कुछ साजिशें थी जिसकी इंफॉर्मेशन इसे दी गई थी और इसने वो सारी साजिशें नाकाम बना दी थी। और फिर ऐसा हुआ कि सलीम थाईलैंड और सऊदीया और दूसरे ममालिक में मिशन पूरे करने के बाद पाकिस्तान वापस आ गया और फरवरी 2002 में इनकी वफात हुई। और पाकिस्तान के इस हीरो के बारे में बहुत कम पाकिस्तानी जानते हैं। भारतीय तो जानते होंगे, भारत की खुफिया एजेंसियां जानती होंगी, मगर भारतीय अवाम भी इनके बारे में नहीं जानती है। और अगर भारतीय अवाम इनके बारे में अपनी ये सच या झूठ का अंदाजा लगाना चाहें या पाकिस्तानी इस बात का अंदाजा लगाना चाहें तो ये बड़ा आसान है, क्योंकि आप फौरन जाकर गूगल के ऊपर गोरखपुर का जो एयरबेस तबाह हुआ था उसके बारे में इंफॉर्मेशन निकालें तो उनके अंदर आपको विनोद चोपड़ा या सैयद सलीम अब्बास का नाम मिलेगा। ये दोनों नाम एक ही शख्स के थे। फिर इनकी कब्र की तस्वीरें भी आपको मिल सकती हैं। और फिर दिलचस्प बात यह है कि इनके बारे में अगर आप ये चाहते हैं कि पूरी पाकिस्तानी कौम को, पूरी भारतीय कौम को पता चले, तो इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा।